اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم مسلم ہیروز میں طارق بن زیاد کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ آج طارق بن زیاد کے بارے کا دوسرا ٹاپک ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازو سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پہ بتایا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ عراق کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا گیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جا کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان اس میں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشیر جرنیلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور اب مسلمان فوج ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پاتے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی بھاری تعداد گھڑ سواروں کی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑتے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ اسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبل جنگ بجایا گیا تو ان میں ایک جوش آ گیا، مگر اس طبل جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ شاہی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئی۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے اسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنایا، وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کے ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر اس کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور رستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا مگر وہ پھرتی سے ان کے نرخے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔
जब तारिक बिन ज़ियाद और इस्लामी लश्कर नहायत जानबाजी से लड़े हुए ईसाई जर्नैल तदमीर तक पहुँचे तो तदमीर जो जंग से पहले इस्लामी लश्कर को हकीकत जानकर खुश हो रहा था, वहीं अब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब इस्पानवी सिपाहियों ने अपने जर्नैल को मैदान से भागते हुए देखा तो उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया और भागने खड़े हुए। इस्लामी लश्कर ने दूर तक इनका पीछा किया और मजीद कई सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। इस लड़ाई में 1100 से ज़्यादा ईसाई मारे गए और सिर्फ 19 मुसलमान शहीद हुए। अब मामून मुसलमानों का जज्बा वादा और रात बात जाकर इबादत करना देख चुका था। जब तदमीर को बुरी तरह शिकस्त होगी तो एक मुसलमान सिपाही इस्माइल को साथ लेकर अपनी बेटी बल्कीस को ढूंढने चल पड़ा। इस्लामी लश्कर से दोनों नाश शिकस्त के बाद ईसाई पानी तिनकों की तरह बिखर चुके थे। उनके खाली खेमों में के अंदर बल्कीस रस्सी में जबड़ी नजर आ गई। इस्माइल ने आगे बढ़कर तेज धार खंजर से इसकी रस्सियाँ काट दी और इसे आज़ाद करके खेमे से बाहर ले आया। बल्कीस ने जब अपने वालिद इमामन को देखा तो रोती हुई इसकी तरफ दौड़ी। इमामन भी अपनी इकलौती बेटी को आज़ाद देकर खुश हो गया, मगर इससे पहले कि इस्माइल और इमामन बल्कीस को लेकर तारिक बिन ज़ियाद के पास जाते, अचानक खेमों में से तदमीर इनकी तरफ बढ़ा और बल्कीस को दबोच कर घोड़े पर सवार हो गया। खेमियों की तरफ दूसरी तरफ भाग गया। चूँकि इस्माइल और इमामन पैदल थे और वो ज़हनी तौर पर तदमीर के अचानक हमले के लिए तैयार भी नहीं थे, इसलिए वह तदमीर का पीछा ना कर सके और तदमीर बल्कीस को लेकर अपने बादशाह रिडार की तरफ चला गया। इस लाइट के बाद असाई फ़ौज के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ चुका था। वो सोचने लगे ये इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है जिसने एक ताकतवर लश्कर लेकर इन्हें शिकस्त दे दी है। इससे पहले कि तदमीर में बादशाह के पास पहुँचा, इसने अपने बादशाह रिडार को कासद के ज़रिए इस्लामी लश्कर की आमद की खबर दी। कासद बिजली की तरह बादशाह के पास पहुँचा और तदमीर का पैगाम दिया। मुसलमानों की बहादुरी, स्पेन पर हमला और इनका बेखौफ लड़ना स्पेन के रहने वालों के लिए हैरानकुन था। स्पेन के रहने वालों को मुसलमानों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये मुसलमान कौन है, कहाँ के रहने वाले, यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो सब इस्लामी लश्कर को पुरस्रार मखलूक समझ रहे थे। इनको मज़हब इस्लाम के मतलब कुछ इल्म नहीं था। इनका जज्बा जहाद भी इनके लिए बिल्कुल नया था। बादशाह रिडार और इसकी फ़ौज लफ्ज़ शिकस्त को जानते ही नहीं थे, इसलिए जब इसको तदमीर की शिकस्त का पता चला तो शदीद गुस्से में आ गया। इसने इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपने मुल्क से 90,000 से ज़्यादा जंगी तजर्बाकार रखने वाले सिपाहियों को इकट्ठा किया और मुक्तसर से इस्लामी लश्कर के मुकाबले में ले आया। मूसा बिन नसीर ने इस्लामी लश्कर की मदद की। जो 5,000 नए जवान रवाना किए थे वो जहाज के जज्बे से सरशार तो थे, मगर इनके पास मुकम्मल जंगी हथियार नहीं थे। अक्सर जवानों के पास तलवारें और ढालें नहीं थी, बल्कि अक्सर सिपाही तो आम लकड़ी की लाठियाँ लिए हुए थे। जबकि दूसरी तरफ डार की फ़ौज जो 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी, इसका सारा लश्कर तमाम जंगी हथियारों से लैस था। लेकिन एक चीज़ इस्लामी लश्कर में इसके लश्कर से ज़्यादा थी, वो ये कि इस्लामी लश्कर जिहाद के जज्बे और शहादत के शौक़ से सरशार था। जब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने हुए तो तारिक बिन ज़ियाद ने अल्लाह करीम के हुज़ूर कामयाबी के लिए दुआ की और अपने सिपाहियों को मुखातब करते हुए बोला, अल्लाह के सिपाहियों, तुम्हारी दलेरी और जहाद का जज्बा देखकर आ रहे कि रहान है। मेरी ये बात याद रखना कि तुम सब अपने वतन से दूर एक अजनबी ज़मीन में आए हो। खुराक और जंगी हथियार ना होने के बराबर हैं, मगर याद रखो हम यहाँ के रहने वालों को इनके जालिम बादशाह से निजात दिलाने हैं, ना कि हम यहाँ मालो दौलत इकट्ठा करने या खुराक जमा करने आए हैं। हमने अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए ये सफ़र किया है। तुम सबको याद होगा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि यहाँ आने से पहले मुझे सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी, जिसमें उन्होंने इस इलाके को फ़तह करने की बिशारत दी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तकरीर में कुरानी आयत का कई मरतबा हवाला दिया, बल्कि एक आयत का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरमाया है, मुसलमानों की मदद करना हम अल्लाह ताला पर फ़र्ज़ है। अजीम कौम के अजीम सिपाहियों, तुम ऐसी अजीम कौम की औलाद हो जिन्होंने ग़ज़वा बदर और हुनैन में अल्लाह ताला की मदद से फतह हासिल की थी। इसलिए ए अल्लाह ताला के शेरों, दुश्मन पर टूट पड़ो, क्योंकि शहीद होना या गाजी बनना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। इस्लामी लश्कर ने अपने सिपा सलार का ईमान अफरोज़ और जज्बा जहाद से भरपूर किताब सुना तो उन्होंने परजोश होकर नारा तकबीर बुलंद किया और ईसाई लश्कर की तरफ बढ़ने लगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि बादशाह डाक एक खूबसूरत बग्गी जिस पर हीरे जवाहरात और सोने से बनी छतरी लगी हुई थी, बड़े गुरूर के साथ रेशमी नरम गद्दे पर बैठा हुआ था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा कि कहीं इनकी कोई शान और शौकत गिरोह में तो नहीं आ गया, मगर इसे ये देखकर खुशी हुई कि सारा लश्कर नफरत से भरी नज़रों से इस पर देख रहा था। इतनी देर में ईसाई लश्कर इस्लामी लश्कर पर हमलावर हो गया। इनमें घोड़ों की लंबी कतार थी। बाजार ऐसे लग रहा था कि ईसाई लश्कर चंद लम्हों में इस्लामी लश्कर को कुचल कर रख देगा। 1 लाख से ज़्यादा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ
7-8 हज़ार मुसलमान आटे में नमक के बराबर थे। ईसाई लश्कर की सफ़ेद दूर तक बिछी हुई थी। अगर हिसाब लगाया जाता तो दोनों लश्करों में 1 और 10 का फ़र्क था, यानी 10 ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए एक मुसलमान था। जब जंग शुरू करने का ऐलान हुआ तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक बार फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर कामयाबी की दुआ की और मदद करने की दरख्वास्त की। फिर सजदे सर उठाकर इसने 3 बार नारा तकबीर बुलंद किया। इस्लामी लश्कर भी अल्लाह अकबर कहकर अपने जज्बे से आगाह किया। तारिक बिन ज़ियाद ने ईसाई लश्कर का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौज को मज़ीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ईसाई बादशाह रडार अफरादी क़ुव्वत और भारी असला रखने के गुरूर से मुसलमानों पर हमलावर हो गया। दोनों तरफ से खूब जोश से जंग जारी थी। जंग में दोनों तरफ से भरपूर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों का मुकाबला किया जा रहा था। मैदान जंग भी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। होता यूँ था कि जब एक मुसलमान सिपाही दुश्मन के सिपाही पर तलवार जनी करता तो इसके वार से 6-7 ईसाई फौजी मारे जाते थे। बाजार देखने में ईसाई फौज मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह करीम ने अपने सिपाहियों के लिए फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए थे, जिस मुसलमान सिपाहियों का मुकम्मल साथ दे रहे थे। शाम तक मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था। गज़वा बदर की तरह इस जंग में भी मुसलमानों ने फरिश्तों का साथ मिलने से कुफार को बुरी तरह शिकस्त दे दी। अल्लाह ताला का शेर काफिर लीडरों को दर्दनाक शिकस्त दे चुका था। जालिम बादशाह रडार के मैदान जंग से भाग गया। इस्लामी लश्कर ने भागते हुए ईसाई लश्कर का पीछा किया। कुफर के खिलाफ तारिक बिन ज़ियाद को एक बड़ी फतह नसीब हो गई थी। तारिक बिन ज़ियाद ने रडार के कब्जे से मजलूम लड़कियों को आज़ाद कर दिया और इस दौरान में से इसे रडार का जमा किया हुआ बहुत भारी मकदार में खजाना भी मिला। जालिम रडार को शिकस्त होने के बाद पूरे अफ्रीका और यूरोप में मुसलमानों ने धूम मचा दी। जब के ईसाइयों के हौसले ख़त्म हो गए तो किसी भी मैदान में इस्लामी लश्कर का डट कर मुकाबला न कर सके। फिर वो दिन भी आ गया जब तारिक बिन ज़ियाद को मिलने वाली बिशारत हकीकत बन गई और पूरा स्पेन अंदलुस अहले ईमान के कदमों तले था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जानसारों के साथ स्पेन फतह करके न सिर्फ इन 2 मजलूम लड़कियों को आज़ाद कर दिया, बल्कि दीगर सैकड़ों मजलूम लड़कियों की दुआएं भी इस्लामी लश्कर के साथ थीं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए वो नेक काम में मदद ज़रूर करता है। स्पेन पर मुसलमानों का कब्ज़ा होने के बाद वहाँ के तमाम गरीब के आसान और वाम अपनी ज़मीन के हकीकी वारिस बन गया। जिन अमीरों ने गरीबों पर ज़िंदगी तंग कर रखी थी वो सब इस्लामी हुकूमत आ जाने से हकदारों को इनका हक देने लगे। मुल्क में जहाँ हर वक्त लूट मार और बदअमनी थी वहाँ अब अमन और सुकून नज़र आने लगा था। स्पेन के अवाम ने मुसलमानों की नेक दिली और अच्छा इखलाक देखा तो धड़ाधड़ ईमान लाकर मुसलमान होने लगे। जो लोग ईमान नहीं लाए इनको भी इस्लामी हुकूमत ने मुकम्मल हकूक़ दे रखे थे। स्पेन के मशहूर शहर करतबा को दारुल खिलाफा बना दिया गया और वहाँ एक आलीशान मस्जिद भी बनाई गई। तारिक बिन ज़ियाद ने पूरा स्पेन फतह करने के बाद मूसा बिन नसीर को पैगाम भेजा कि अब उसे पूरा यूरोप फतह करने की इजाज़त दी जाए। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद अब्दुल बिन मालिक को पैगाम भेजा, मगर उन्होंने हुक्म फरमाया कि तुम स्पेन के इंतज़ामात किसी को सौंप कर तारिक बिन ज़ियाद के साथ अफ्रीका के रास्ते दिमिश्क आ जाओ। मूसा बिन नसीर ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को स्पेन का गवर्नर बनाया और तारिक बिन ज़ियाद के साथ दुश्मन की दिमिश्क की तरफ चल पड़ा। मगर तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जब दिमिश्क पहुँचे तो इस वक्त खलीफा अब्दुल मालिक फौत हो गए, इसलिए इन दोनों को इल्म ना हो सका कि खलीफा ने इन दोनों को किस लिए दिमिश्क बुलाया था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की वफ़ात के बाद सलमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बने तो उन्होंने हर शख्स के साथ दुश्मनी पा ली। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद भी खलीफा के इंतकाम का शिकार हो गए। खलीफा ने इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। खलीफा सलमान बिन अब्दुल मालिक का दौर हुकूमत अजीम मुस्लिम फ़ातहीन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। ऐसे मुस्लिम फ़ातहीन जिनका नाम तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है वो सब इस दौर में नहायत नारवा सलूक का शिकार हो गए। गवर्नर खरासान, फातिहा खतीबा और मोहम्मद बिन कासिब जैसे अजीम मुसलमान फ़ातहीन भी खलीफा सलमान बिन अब्दुल मालिक के मुजरम ठहरे और खलीफा ने मूसा बिन नसीर के बेटे को भी स्पेन की गवर्नर से हटा दिया कि कहीं वो अपने बाप का बदला ना ले ले। तारिक बिन ज़ियाद के आखिरी दिनों के हवाले से मुरखीन खामोश हैं, मगर चंद जगहों पर तारिक बिन ज़ियाद के इंतकाल की तारीख 11 अप्रैल 720 ईस्वी दर्ज है। स्पेन जिसको अंदलस भी कहा जाता है, इस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और आखिर नहायत अफसोसनाक तरीके से इन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। मगर स्पेन के फातह तारिक बिन ज़ियाद के कारनामों से मुस्लिम फ़ातहीन की तारीख हमेशा जागती रहेगी। दोस्तों, आपको मुस्लिम हिस्ट्री बताने का मकसद आपको इस्लाम के बारे में बताना है कि तारीख़ गवाह है जब तक मुसलमानों ने इस्लाम को अपनाए रखा, इस्लाम की रवायात, इस्लाम की तहज़ीब, इस्लाम को अपनी हकीकी मानों में
पहचाने रखा, अपनी ज़िंदगी में लागू रखा, तब तक मुसलमान कामयाब रहे। लेकिन आज दोस्तों देखें, आज हमारे मुसलमान भाई, हर मुस्लिम मुल्क, हम 52-53 कंट्रीज़ होने के बावजूद भी आज हम क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, आज हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह हमने इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है। हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सोचें मगरब वाली हैं। हमने मगरब के तर्ज़ ज़िंदगी को अपना लिया है, जबकि मगरब ने हमारे इस्लाम वाली तर्ज़ ज़िंदगी, हमारे इस्लाम के क़वानीन को अपनाया, जिसकी वजह से मगरब, अंग्रेज़ आज तरक्की कर रहे हैं और हम आज रिसवा हैं। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा इस्लाम को लाना होगा। हम अगर अपनी ज़िंदगी में दोबारा इस्लाम को लाने में कामयाब हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान दोबारा पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब